بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ سو لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول اپرادھی ایپیسوڈ 5۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔ کہانی پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب لازمی کریں۔ تو پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہاری موت ہوں انصاری، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب کی بار نسوانی آواز اسے چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب ٹیبل سے یکلخت فضا میں اٹھی اور پھر انصاری کی نگاہوں کے سامنے فضا میں تیرنے لگی۔ انصاری کے مساموں سے خارج ہونے والا پسینہ چیونٹیوں کی طرح اس کے بدن پر رینگ رہا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ یکا اسٹڈی روم کی لائٹیں خود بخود جلنے بجھنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ عدالت میں چلا کر بولنے والا انصاری آج کسی بت کی طرح ساکت حالت میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اذیتناک موت کا خوف اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ لائٹ کا جلنا بجھنا بند ہو چکا تھا، لیکن کتاب بدستور کمرے کی فضا میں تیر رہی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ موت سے قصور نہیں پوچھا کرتے انصاری، لیکن تمہیں تمہارا قصور ضرور بتایا جائے گا۔ نسوانی آواز بالکل انصاری کے قریب سے آ رہی تھی۔ سنو انصاری، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میرے اور کاشف کے درمیان حائل ہو رہے ہو۔ شاید تمہاری موت کا سن کر کاشف اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دے۔ میں تم دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو، انصاری نے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہے، نسوانی آواز نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ نادیدہ ہاتھ انصاری کے گلے پر جم گئے۔ انصاری نے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے اپنے گلے سے نادیدہ ہاتھ ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ کسی فولادی شکنجے کی طرح اس کی گردن کے گرد کسے ہوئے تھے۔ انصاری مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا، زندگی ریت کی طرح آہستہ آہستہ اس کی مٹھی سے سرکتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور آنکھیں اذیت کی وجہ سے حلقوں سے باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ پاؤں مارنے اور ناک اور منہ سے خرخراتی ہوئی سانسیں خارج کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اسٹڈی روم میں ایک جان لیوا سکوت طاری تھا اور فرش پر انصاری کا بے جان جسم آڑی ترچھی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں خوف سا ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے، ایک ایسی اذیت جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا دن سیٹھ طارق جمیل اور کاشف کے لیے بہت صبر آزما تھا۔ ایڈوکیٹ انصاری کی پراسرار موت نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ بر وقت انہیں کوئی اچھا وکیل نہ ملا، تاہم کاشف کی طرف سے جو وکیل عدالت میں پیش ہوا وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کاشف کی ضمانت منظور کروانے میں ناکام رہا تھا۔ کاشف کو 10 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور آئندہ تاریخ پیشی بھی 10 دن کے بعد ہی ملی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کاشف نے ابھی تک حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ وہ لاک اپ کے نیم یخ بستہ فرش پر بیٹھا نندنی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچ رہا تھا، لیکن اسے کوئی راہ فرار سجھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ نندنی کے مقابلے میں خود کو بے دست و پا محسوس کر رہا تھا۔ اس آتش زادی نے اسے بری طرح سے گھیر لیا تھا۔ انسپکٹر رنجیت ورما کے بعد انصاری کا پراسرار قتل بھی نندنی ہی کی کارستانی تھی۔ وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی بات پر یقین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سوچتے سوچتے وہ ایک دم جھنجھلا اٹھا، پھر ذرا اونچی آواز میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم یہیں کہیں موجود ہو اور میری حالت سے محفوظ ہو رہی ہو، لیکن ایک بات بھی میری کان کھول کر سن لو۔ میں بھلے پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں، مگر تم سے مدد کی درخواست نہیں کروں گا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، نفرت، سمجھی تم؟ لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تمہاری خاطر میں نے پجاری شمبھو ناتھ جیسی مہان ہستی کو بھی نہیں چھوڑا اور کال انصاری کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اگر تم نے اپنی ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو میں تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گی۔ نندنی سچ مچ لاک اپ کے اندر موجود تھی اور اسے وارننگ دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنے ہاتھوں سے مار کیوں نہیں دیتی؟ اس نے ضد ہو کر سوال کیا۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن کروں گی نہیں۔ تاہم انصاری کے بعد تمہارے ماں باپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ میں تمہارے باپ کا بزنس تباہ کر کے اسے پائی پائی کا محتاج کر دوں گی۔ میری دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی، اس لیے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرو۔ تمہارا جو دل چاہے کرتی پھر، مگر میں تمہاری بات کسی صورت نہیں مانوں گا۔ یہی میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے،
मैं जा रही हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, क्योंकि अब पुलिस वालों ने तुम्हारा बुरा हश्र करना है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा के सामने उसे पेश कर दिया गया। अशोक मल्होत्रा लम्हा भर के लिए से कीनातोज नज़रों से घूरता रहा, फिर ज़रा बारोब लहजे में बोला, देखो मिस्टर काशिफ, ये थाना है। यहाँ बड़े बड़े नामी ग्रामी गुंडे तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि पूरी कहानी सच सच मुझे बता दे, वरना वापस लॉकअप में खुद चलकर जाने के बजाय सिपाहियों के कंधों पर जाओगे। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर रख दूंगा। मल्होत्रा साहब, सच मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि मेरा इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उसे मैंने नहीं मारा था। आप आखिर मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अशोक मल्होत्रा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कुछ नादीदा शक्तियाँ हैं जिनसे तुम काम लेते हो। जब तक मुझे बताओगे नहीं, यहाँ से छूट कर नहीं जा सकोगे। चलो आप बता दो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मेरे पास ऐसा कोई इल्म होता तो कि मैं यहाँ से फ़रार ना हो सकता। इसे फ़ौरन ड्राइंग रूम में ले जाओ, वो सिपाहियों से चिल्लाकर बोला। मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, फिर से मालूम होगा कि इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा किस बला का नाम है। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ज़रा तफन्नुन तफ्तीशी कमरे को हमेशा ड्राइंग रूम कहा करता था। अशोक मल्होत्रा का हुक्म सुनकर दोनों सिपाही आगे बढ़े और काशिफ को बाजुओं से पकड़कर तफ्तीशी कमरे की तरफ ले गए। वो एक अमीर ज़्यादा था, ज़िंदगी में कभी भी ऐसे हालात से नहीं गुजरा था। बचपन से लेकर आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था, मगर आज न जाने उसके साथ क्या होने वाला था। एक तरह से अशोक मल्होत्रा कानून की बजाय कानून शिकन ताकतों का अलाकार नज़र आ रहा था, क्योंकि नादानिस्ता ही सही वो नंदिनी की मदद कर रहा था। और नंदिनी ना सिर्फ ये कि कानून की मुजरिम थी, बल्कि काशिफ के साथ भी खुलकर दुश्मनी कर रही थी। तफ्तीशी कमरे में पहुंचते ही काशिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के अजियत रसां आलात आवेज़ां थे, जिन्हें दौरान तफ्तीश पुलिस वाले आदि मुजरों पर इस्तेमाल करते थे। काशिफ को एक मखसूस किस्म के कौच पर लिटा दिया गया और उसके हाथ पांव चमड़े के मजबूत बेल्टों के साथ कस दिए गए। इस पोजीशन में कि वो हिलने से भी कासिर था। काउच के ऐन ऊपर छत के साथ एक पावरफुल बर्की बल्ब लटक रहा था, जिसकी तेज़ रोशनी बराह रास्त काशिफ की आंखों में चुभ रही थी। काशिफ ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा उसे गाली देते हुए बोला, मैं तुम मुस्लिमों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोग हालात को देखकर गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हो। इतना कहकर अशोक मल्होत्रा ने उसके पैरों के तलवों पर बेत की छड़ी बरसाना शुरू कर दी। नाकाबिले बर्दाश्त अजियत की वजह से काशिफ के मुंह से लगातार चीखें निकल रही थी, मगर अशोक मल्होत्रा को इस पर ज़रा भी रहम न आया। काशिफ के तलवे सुर्ख हो चुके थे और उन पर छड़ी के निशान साफ नज़र आ रहे थे। हाँ बोलो, तुमने इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा को किस तरह कत्ल किया था? एक लम्हे के लिए इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने हाथ रोकते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम। अशोक मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, मत बताओ। अब मैं तुम्हारे पैरों के नाखून उखाड़ने लगा हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अशोक मल्होत्रा ने उसे गाली देते हुए आगे बढ़ा और ऐन उसी वक्त काशिफ ने बाआवाज़ बुलंद नंदिनी को पुकारा। फिर इससे पहले कि अशोक मल्होत्रा उसके पाँव को हाथ लगाता, एक नादीदा हस्ती का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और वो लट्टू की तरह घूमता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया। काशिफ ने चिल्लाकर कहा, नंदिनी से जान से मत मारना, बाकी जो दिल चाहे इसके साथ सलूक करो। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा नंदिनी का ज़ोरदार थप्पड़ खाकर अभी संभला भी नहीं था कि एक नादीदा हाथ ने उसे सर के बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसके पैर कमरे का फर्श छोड़कर फिजा में साइकिल की तरह चल रहे थे और आंखें हैरत की शिद्दत से फटने के करीब हो गईं। उसका ये हाल देखकर दोनों सिपाही चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कौन है? अशोक मल्होत्रा के मुंह से घिघियाती हुई आवाज़ निकली। कमरे की फिजा में लटका हुआ वो अजीब मुज़िका खेज अंदाज में हाथ पांव मार रहा था। नादीदा हाथ बेपनाह ताकतवर था। इस स्ना में बाहर शोर गुल और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ उभरी और नंदिनी गायब हालत में ही तेज़ी से काउच की तरफ बढ़ गई। अशोक मल्होत्रा कमरे की फिजा में तैर रहा था। खौफ, दहशत और अजियत की शिद्दत से इसके चेहरे के नकूश बिगड़ चुके थे, लेकिन इस हालत में भी उसने अपने होश ठिकाने रखे हुए थे। मान उसने होलिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाकर सर्विस रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर ये जुर्रत उसे महंगी पड़ी। नादीदा हाथ ने उसे पूरी कुव्वत के साथ दोबारा दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराने के बाद वो मुर्दा छिपकली की तरह धप की आवाज़ से नीचे गिरा, फिर देखते ही देखते साकित हो गया। शायद वो बेहोश हो चुका था। इस स्ना में बाहर शोर गुल और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ उभरी और नंदिनी गायब हालत में ही तेज़ी से कौच की तरफ बढ़ गई। काशिफ के जिस्म के गिर्द कसे हुए बेल्ट खोलने के बजाय उसने एक झटके से तोड़ डाले थे।
काशिफ काउच से उछलकर नीचे उतरा, मगर फिर मुंह से ऊह की आवाज़ निकालकर फर्श पर बैठ गया। गालबन बेर की छड़ी ने उसके पैरों के तलवे बुरी तरह जख्मी कर दिए थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा यक धमाके से खुला और इंस्पेक्टर आबदी हाथ में रिवॉल्वर पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 4 सिपाही थे, हाथों में राइफलें थामे अंदर आ चुके थे। खबरदार! काशिफ पर नज़र पड़ते ही इंस्पेक्टर आबदी बारोब लहजे में बोला, हिलने की कोशिश मत करना वरना भून कर रख दूंगा। हाथ ऊपर। इंस्पेक्टर आबदी की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि रिवॉल्वर हैरत अंगेज़ तरीके से उसके हाथ से निकलकर कमरे की फ़िज़ा में तैरने लगा। इतना तो आबदी को मालूम हो गया था कि रिवॉल्वर उससे छीना गया है, मगर रिवॉल्वर छीनने वाली हस्ती उसकी निगाहों से ओझल थी। इंस्पेक्टर आबदी अबदी किस इक़दाम के मुतल्लिक़ सोच ही रहा था कि यकयक कमरा शेर की खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। दूसरे ही लम्हे उनके सामने कमरे के फर्श पर एक खौफनाक और कवि हैकल शेर खड़ा उन्हें कीनातोज़ निगाहों से घूर रहा था। चारों सिपाही शेर को देखकर उल्टे कदमों गिरते पड़ते वापस दौड़े और आबदी सकते किसी कैफियत में मुब्तला कभी शेर को तो कभी काशिफ को देख रहा था। उसने सर्विस रिवॉल्वर अब काशिफ के हाथ में मौजूद था। जी तो चाहता है कि इसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं, लेकिन सज्जाद की दोस्ती मेरे आड़े आ रही है। काशिफ ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तानते हुए गज़बनाक लहजे में कहा। इतना कहकर काशिफ शेर की तरफ मतवज्जो हो गया। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, बेवजह लोगों के हाथ से खून रंगना अच्छी बात नहीं। काशिफ की इतना कहने की देर थी कि शेर समेत वो आबदी की निगाहों से चश्मे ज़दन में ओझल हो गया और आबदी सकते किसी कैफियत में अपनी जगह पर खड़ा रह गया। ये मुहैयर अकल वाक़या उसकी समझ से बाहर था। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में उसका वास्ता कभी भी इस किस्म की सिचुएशन से नहीं पड़ा था। चंद लम्हे हक्का बक्का खड़ा रहने के बाद वो फर्श पर आड़ी तिरछी हालत में पड़े हुए अशोक मल्होत्रा की तरफ बढ़ गया, जो बुरी तरह घायल नजर आ रहा था। काशिफ और नंदिनी शहर से दूर उसी साल खुर्दा मंदिर में मौजूद थे, जहाँ कभी पुजारी शंभूनाथ की हुक्मरानी हुआ करती थी। लेकिन अब उस मंदिर में सिर्फ नंदिनी का हुक्म चलता था। नंदिनी काशिफ के सामने खूबसूरत और नौजवान दुशीज़ा के रूप में मौजूद थी। काशिफ एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ा आराम कर रहा था। उसके दोनों पैरों पर सफ़ेद रंग की पट्टियां बंधी हुई थीं। इसी दौरान कमरे में एक हसीनो जमील लड़की दाखिल हुई। नंदिनी के सामने अदब से सर झुकाते हुए बोली, श्री नारायण चंद आपसे मिलना चाहते हैं। नारायण चंद का नाम सुनते ही नंदिनी एकदम भड़क कर बोली, वो भी शायद अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरना चाहता है। उसे मेरी बात पर किसी तरह यकीन ही नहीं आता। बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। लड़की उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई और काशिफ नंदिनी की तरफ मतवज्जो हो गया। ये नारायण चंद कौन है? तुमसे क्यों मिलना चाहता है? पुजारी शंभूनाथ का बेटा है और अपने गुमशुदा बाप को ढूंढता फिर रहा है। अहमक को इतना भी मालूम नहीं कि इसका बाप कब का जहन्नम रसीद हो चुका है। ये भी किसी रोज़ मेरे हाथों अपने बाप के पास पहुँच जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो इस कमरे में दाखिल हो रही थी जहां नारायण चंद को बिठाया गया। उसे कमरे में दाखिल होते देखकर नारायण चंद इस्तकबाली अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते देवी जी, उसने सलाम के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा। तशरीफ़ रखिए। नंदिनी सर की हल्की सी जुम्बश से इसके सलाम का जवाब देते हुए बोली। नारायण चंद शुक्रिया कहकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी जी, मैं पिताजी को तलाश करते करते थक चुका हूँ। आप इस सिलसिले में मेरी मदद क्यों नहीं करती? पिताजी ने बरसों इस मंदिर की सेवा की है कि उनकी तलाश के लिए आप थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकती? तुम क्या समझती हो कि मैंने इसे तलाश नहीं किया होगा? वो मेरे गुरु थे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो महान शक्तियों के मालिक हैं, इसलिए हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से कहीं रुपोश हो गए हों। अक्सर वो ऐसे जाप करते रहते हैं। नंदिनी ने इसे एक नई राह पर डालते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो अब दुनिया में नहीं रहे। अक्सर मेरे कानों में इस किस्म की सरगोशियाँ गूंजती रहती हैं। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे पिताजी की आत्मा मुझे पुकार रही हो। नारायण चंद अपने महसूसात का इजहार करते हुए बोला। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, नंदिनी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। काश मेरे पास कोई ऐसा इल्म होता जिसके ज़रिए मैं मामले की तह तक पहुंच सकता, उसने काफ़ी अफसोस मलते हुए कहा। किसी हद तक तुम ठीक ही कहते हो। पुरस्कार अलूम की दुनिया में जहाँ एक ज्ञानी के हज़ारों दोस्त होते हैं, वहाँ दुश्मन भी बेशुमार होते हैं। हो सकता है किसी ने बेखबरी में तुम्हारे पिताजी को नुकसान पहुँचा दिया हो। ठीक है, नंदिनी ने कता कलामी करते कहा। अभी तुम जाओ, पहले मैं खुद तुम्हारे पिताजी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगर इस कोशिश में नाकाम हो गई तो फिर हम दोनों मिलकर इन्हें तलाश करेंगे। तो फिर मैं कब दोबारा आऊँ? उसने अपनी जगह से उठते हुए सवालिया अंदाज में कहा। तुम्हें अब तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही तुमसे मिलूँगी। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नंदिनी ने ज़ूमानी अंदाज में जवाब दिया और मुतमईन अंदाज में रुखसत हो गया।
पुलिस की हिरासत से काशिफ का फरार इंस्पेक्टर आबदी और अशोक मल्होत्रा के लिए एक मुसीबत बन गया। महकमे के आला ऑफिसर्स ने इन दोनों को खूब खरी खरी सुनाई थी। एसीपी साहब ने तो इन दोनों को मुअत्तल करने लगे थे, मगर फिर इंस्पेक्टर आबदी की मिन्नत समाजत ने काम कर दिखाया था। ताहम एसीपी साहब ने इन्हें सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दी थी। अगर वो इन चंद दिनों के दौरान काशिफ को गिरफ्तार करने में नाकाम रहते तो फिर एसीपी साहब ने इन्हें बिला तरद्दुद मुअत्तल कर देना था। इंस्पेक्टर आबदी के साथ साथ अशोक मल्होत्रा भी बेहद परेशान था। वो दोनों काशिफ को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारते फिर रहे थे, लेकिन हर जगह इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। इस सिलसिले में इसका भाई सज्जाद ही इसकी मदद कर सकता है, जिसे रूहानी इल्म पर खासी दस्तरत हासिल थी और अलावा अजीज़ से काशिफ का दोस्त होने का शर्फ भी हासिल था। मौका की मुनासबत देखते ही आबदी ने इसे एक दिन घेर लिया। सुनो सज्जाद, आबदी ने बिला तमहीद कहना शुरू किया, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आजकल मैं किन मुश्किलात का शिकार हूँ। मुलाजमत के साथ साथ मेरी इज़्ज़त और वक़ार भी दाव पर लगा हुआ है, और ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त काशिफ का किया धरा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसके पास ज़रूर कोई मावराई ताकत है जिसके बलबूते पर वो जुराइम करता फिर रहा है। तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करना होगी। सज्जाद ने कहा, भाईजान, मैं आपकी बात को जुटाने की जुर्रत नहीं कर सकता, ताहम इतना ज़रूर कहूँगा कि काशिफ बज़ाते खुद मावराई ताकतों का मुनकर था और अक्सर मेरे साथ भी इन्हीं बातों पर लड़ जाया करता था। मेरे लाख इसरार के बावजूद वो ऐसी बातों को महज मन घड़त अफसाने कहा करता था, मगर मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आबदी पुरजोर लहजे में बोला, काशिफ के पास मावराई ताकतें हैं जो इसके ग़ुलाम हैं। इतना कहकर इसने सज्जाद के इस्तफसार पर इसे हवालात में पेश आने वाले तमाम वाक़यात बिला तरद्दुद सुना डाले। आबदी की ज़ुबानी पूरा वाक़या सुनने के बाद सज्जाद ने लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद कहा, इसका मतलब है कि काशिफ किसी जिन या जिनज़ादी का ग़ुलाम बन चुका है, वरना हवालात में शेर कहाँ से आ सकता है। अफसोस इसकी बेराह रवि ने आज इसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया कि इसका ईमान भी ख़तरे में पड़ चुका। आबदी ने कहा, तुम्हें कानून की मदद करने के लिए काशिफ के मुकाबले पर आना पड़ेगा। उसके पास अगर शैतानी ताकतें हैं तो तुम्हारे पास रूहानी क़ुव्वतें हैं। मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, सज्जाद ने पुरज़म लहजे में कहा, लेकिन सबसे अहम मसला इसे तलाश करना है। वो आसानी के साथ सामने नहीं आएगा। ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो अगर कोई आम शख्स नहीं, वो तुम्हारा दोस्त रहा है। यकीनन इसके मतलब तुम्हें बहुत कुछ मालूम होगा। इसकी कोई ऐसी कमज़ोरी जिस पर हम निगाह रख कर इसे ढूंढ सकें। रूप बदल कर ही सही, लेकिन मुझे यकीन है वो घूमता फिरता ज़रूर होगा। आबदी की बात सुनकर यकायक सज्जाद की आंखें चमक उठीं। भाईजान, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसे पाने के लिए काशिफ हर हद से गुजर सकता है। इस लड़की का नाम सबीहा है और वह गरीब रेडी वाले की बेटी है। हम इस लड़की पर नज़र रख कर काशिफ का सुराग पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी अब याद आ गया। इंस्पेक्टर आबदी की आंखें किसी अंदरूनी जज्बे के तहत चमकने लगी। काशिफ का किसी दानियाल नावी नौजवान से झगड़ा हुआ था और गालबन झगड़े की वजह एक लड़की ही थी, और शायद इसका नाम भी सबीहा था। बाद में काशिफ के बाप सेठ तारक जमील ने दानियाल नावी नौजवान की ज़मानत देकर इसे रिहा करवा लिया था। सज्जाद कुछ कहने ही वाला था कि इस नाम आबदी का मोबाइल फ़ोन बज उठा। हेलो, इंस्पेक्टर आबदी बोल रहा हूँ। मोबाइल कान से लगाते हुए इसने संजीदगी से कहा, सर, मैं हेड कांस्टेबल शंकर पांडे से बात कर रहा हूँ। सर, मैं हेड कांस्टेबल शंकर पांडे बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो पांडे, क्या बात है? खैर तो है? तुम्हारी आवाज़ से परेशानी झलक रही है। कहीं को मसला तो नहीं हो गया? मसला तो बहुत बड़ा हो गया है सर, पांडे ने संजीदगी से कहा। नारायण चंद नामी एक नौजवान कत्ल हो गया है। थाने में लोगों ने उधम मचा रखा है। मकतूल एक मशहूर पुजारी का बेटा था। आप फ़ौरन थाने पहुंच जाएं, वरना हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ओके, मैं पहुंच रहा हूं। मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? इन्हें कहें कि हालात को कंट्रोल करें। इंस्पेक्टर आबदी ने पांडे को हिदायत देते हुए जवाब दिया। सर, मल्होत्रा साहब तो अभी तक नहीं पहुंचे। बहरकैफ मैं खुद ही हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। बस आप जल्दी से थाने पहुंच जाएं। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। इतना कहकर आबदी ने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया और सज्जाद से बोला, फ़िलहाल मैं थाने जा रहा हूं, एक मर्डर हो गया है। काशिफ वाले मामले पर बाद में बात करेंगे। वैसे तुम खुद को तैयार रखना, मुझे किसी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे आप हर वक्त तैयार पाएंगे भाईजान, सज्जाद ने पुरज़म लहजे में कहा। अगर आप कहें तो मैं आज ही सबीहा पर नज़र रखना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है काशिफ सबीहा से मिलने की कोशिश करे, इस तरह वो जल्द ही हमारी नज़रों में आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आबदी इत्मीनान का इजहार करते हुए बोला, तुम आज से अपना काम शुरू कर दो। अगर काशिफ नज़र आ जाए तो उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। पहले मोबाइल फ़ोन पर मुझे इत्तला देना। बगैर मेरी हिदायत के कोई भी कदम ना उठाना, वरना किसी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ भाईजान, आप बेफिक्र होकर थाने जाएं। मैं बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। जाने थाने में क्या हालात होंगे। मैं बस
जाके हालात मालूम करता हूँ। अब तो नौकरी भी ख़तरे में पड़ती नज़र आ रही है। भाईजान, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो अक्सर अपने प्यारों को आजमाइश में डालता रहता है, इसलिए हौसला न हारें, इंशाल्लाह एक दिन जीत हमारी होगी। सज्जाद ने आबदी का हौसला बढ़ाते हुए जवाब दिया। घर से निकलने के बाद आबदी जब थाने पहुंचा तो थाने के अहाते में तकरीबन 40-50 आदमी मौजूद थे, जिन्होंने हेड कांस्टेबल शंकर पांडे को घेर रखा था और उस पर आवाज़ें कस रहे थे। बेचारा पांडे इंतहाई बेबसी के आलम में इधर उधर देख रहा था। लोगों ने सवाल कर करके उसका नाटका बंद कर दिया था। हर शख्स अपनी अपनी हाँक रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? थाने में दाखिल होते ही आबदी बारोब आवाज़ में बोला, ये थाना है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं, चलो बाहर निकलो यहाँ से। नहीं निकलते पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? एक जोशीले नौजवान ने चंद कदम आगे बढ़कर छाती थामते हुए जवाब दिया। आबदी ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, बरखुरदार, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। कत्ल का यह मुकदमा तुम्हारे खिलाफ भी दर्ज किया जा सकता है। थाने में आकर सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में तुम सबको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर तुम लोग 5 मिनट के अंदर अंदर थाने के अहाते से बाहर ना निकले तो मैं एसीपी साहब से तुम सब की गिरफ्तारी की परमिशन हासिल कर लूँगा। इंस्पेक्टर आबदी की धमकी कारगर साबित हुई। लोग एक करके थाने से बाहर निकल गए। चंद लम्हों के बाद वो जोशीला नौजवान आबदी के सामने अकेला खड़ा बगलें झांक रहा था। उसके हमायती उसे तनहा छोड़कर पिस्पाई इख्तियार कर चुके थे। नौजवान बगैर कुछ कहे उल्टे कदमों घुमा फिर तेज तेज चलता हुआ थाने से बाहर निकल। आबदी ने मुस्कुराकर हेड कांस्टेबल शंकर पांडे की तरफ देखा तो वो बोला, सर आपने बिल्कुल ठीक किया। ये लोग बातों के नहीं लातों के भूत हैं। दौर ही कुछ ऐसा आ गया है, कोई शराफत की जुबान समझता ही नहीं, जिसे देखो लीडर बनने के ख्वाब देख रहा है। आबदी ने कहा, पांडे, इस देश को लीडरों की नहीं अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। सर मैंने फ़ोन करके मालूम कर लिया है, मल्होत्रा साहब घर से थाने के लिए निकल चुके हैं। अब ऑफिस में तशरीफ़ रखें, बस वो पहुंचने ही वाले होंगे। ओके, तो फिर मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी चाय भिजवा दें। सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। आबदी ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला और शंकर पांडे ने इस बात में सर हिला दिया। इंस्पेक्टर आबदी जो ही फारग हुआ, इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा थाने पहुँच गया। आबदी ने उसे देखते ही कदरे दुष्ट लहजे में कहा, मल्होत्रा साहब, वक्त देखा है, दिन के 11 बजने वाले हैं और तुम अब थाने पहुंच रहे हो। शायद तुम पुलिस की सर्विस से उकता चुके हो। सॉरी सर, देर से पहुंचने की माफ़ी चाहता हूं। दरअसल कल रात से मेरी तबीयत कुछ नासाज है, अब भी हल्का सा टेम्परेचर बाकी है। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने माजरत ख्वाना लहजे में जवाब दिया। फॉर गॉड सेक मल्होत्रा, यह मेरी जान पर बनी हुई है, तुम सॉरी कहकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि एक और कत्ल हो गया है हमारे थाने की हदूद में। पहले इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा, फिर एडवोकेट इंसारी रवि नारायण चंद, जो किसी नामी ग्रामी पुजारी का बेटा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। आबदी दिल की भड़ास निकालते हुए बोला। कूल डाउन सर, इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा नरम लहजे में बोला। ये कौन सी अनोखी बात है? कत्ल तो होते ही रहते हैं। हमारे परेशान होने या ना होने से ये सिलसिला रुक तो नहीं सकता। हमारा काम है देनदारी से तफ्तीश करना, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी परेशानी की वजह पे दर पे कत्ल है। इसके अलावा काशिफ वाला पुरस्कार मामला भी मुझे सुकून नहीं लेने देता। मल्होत्रा ने कहा, सर आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। जल्द या बदेर हर मुजरम पकड़ा ही जाता है। रह गई एसीपी साहब की बात, तो पहले किसी एहलकार से मुतमिन है। हर ऑफिसर के काम में कीड़ा निकालना उसका बेहतरीन मशगला है। आबदी ने झंझला कर कहा, मल्होत्रा साहब, क्या एसीपी साहब के सामने तुम ये तमाम गुफ्तगू फरमा सकते हो? ये कैसे मुमकिन है सर? आप मेरे सीनियर हैं। आपके होते हुए भला कैसे कोई बात एसीपी साहब से कह सकता हूँ? मल्होत्रा ने परेशान को अंदाज में जवाब दिया और आबदी ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। ओके, अगर ये बात है तो फिर आइंदा एहतियात करना, भूल कर भी ड्यूटी से लेट ना होना, वरना मजबूरन मुझे एसीपी साहब से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अशोक मल्होत्रा यस सर कहते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और आबदी अपने सामने टेबल पर पड़ी हुई एक फ़ाइल पर झुक गया। पे दर पे कत्ल की वारदातों ने उसे चकरा कर रख दिया था। अभी रंजीत वर्मा वाला केस हल नहीं हुआ था कि यके बाद दीगरे 2 कत्ल हो गए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आबदी, अशोक मल्होत्रा, हेड कांस्टेबल शंकर पांडे 2 कांस्टेबलों के साथ पुलिस वैन में बैठकर थाने से जाए वारदात की तरफ रवाना हो चुके थे। मकतूल नारायण चंद की रहाइश शहर के गुंजान इलाके में थी। तकरीबन पौन घंटे की ड्राइविंग के बाद पुलिस वैन नारायण चंद के घर के सामने मौजूद थी। नारायण चंद के घर के सामने काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो पुलिस वैन को देखते ही इधर उधर खिसक गए थे। वैन के रुकते ही आबदी तेज़ी से नीचे उतरा, फिर नारायण चंद के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर मल्होत्रा और दूसरे पुलिस वाले भी उसके साथ साथ चल रहे थे।
نارائن چند کی لاش اس کی خوابگاہ میں پڑی ہوئی تھی۔ آبدی نے دونوں کانسٹیبلوں کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود اشوک ملہوترا اور شنکر پانڈے کو ساتھ لے کر نارائن چند کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ لاش کے گرد چند لوگ موجود تھے، جن میں 3 عورتیں اور 2 مرد بھی تھے۔ فی الحال آپ تمام لوگ مہربانی کر کے باہر تشریف لے جائیں تاکہ ہم ابتدائی قانونی کارروائی کر سکیں، بعد میں ہم آپ لوگوں کو بلا لیں گے۔ آبدی کی بات سن کر وہ پانچوں بغیر کسی تردد کے خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی آبدی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاش کو ایک سفید چادر کے ذریعے ڈھانپا گیا تھا۔ آبدی نے آگے بڑھ کر لاش کے اوپر سے سفید چادر کھینچ لی۔ لاش کا چہرہ دیکھ کر آبدی ایک جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ لاش کا نرخرا بری طرح اجڑا ہوا تھا۔ مقتول کے لباس پر جا بجا خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے اور کمرے کا فرش بھی خون آلود تھا۔ آبدی نے جھک کر لاش کا بغور جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت دو چند ہو گئی کہ لاش کے چہرے پر خراشوں کے بڑے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے پنجہ مار کر لاش کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی ہو۔ پنجہ کسی عام درندے کی بجائے شیر کا نظر آ رہا تھا۔ یک آبدی کے ذہن میں حوالات والا منظر ابھرا اور اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ سوچا، پھر اشوک ملہوترا سے مخاطب ہو کر بولا، ناممکن، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا سر؟ ملہوترا نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔ ملہوترا صاحب، یہ قتل ہمارے لیے ایک معمہ ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی انسان کی بجائے کسی درندے نے ہلاک کیا ہو۔ معاملہ بہت پراسرار نظر آ رہا ہے۔ خدا خیر کرے، اس شہر پر کوئی عفریت نازل ہو چکا ہے۔ ملہوترا بولا، سر، اندازے قائم کرنے سے پہلے ہمیں مقتول کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی اہم کلو ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم بآسانی اس پراسرار قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آبدی نے اس بات میں سار ہلاتے ہوئے کہا، تفتیش تو ہمیں مقتول کے گھر سے ہی شروع کرنا پڑے گی، مگر اس سے پہلے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال میں بھیجنا پڑے گا۔ تم فوراً اس کا بندوبست کرو، تب تک میں مقتول کے کمرے کی تلاشی لیتا ہوں، شاید کوئی چھوٹا موٹا ثبوت مل جائے۔ اوکے سر، آپ کمرے کی تلاشی لیں، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر ملہوترا نے دونوں کانسٹیبلوں کو لاش اٹھانے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملہوترا لاش لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دونوں کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھے، تاہم ہیڈ کانسٹیبل شنکر پانڈے کو وہ آبدی کے پاس چھوڑ گیا۔ آبدی بڑی باریک بینی کے ساتھ کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ 15-20 منٹ کی تگودو کے بعد آخرکار آبدی کے ہاتھ ایک ڈائری لگ گئی۔ اس نے سرسری طور پر ڈائری کی ورق گردانی کی تو ایک نام دیکھ کر ایک دم چونک اٹھا۔ یہ نام نندنی کا تھا۔ کاشف کی زبانی وہ نندنی کا نام سن چکا تھا۔ اب یہ ڈائری اس کے لیے خاص اہمیت اختیار کر چکی تھی، اس لیے اس نے ڈائری بند کر کے بغل میں دبا لی۔ پھر شنکر پانڈے سے بولا، نارائن چند کے گھر والوں کو بلا لاؤ، شاید ان سے کوئی بات معلوم ہو جائے۔ اتنا کہہ کر آبدی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شنکر پانڈے یس سر کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں جی، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت دکھ اور کرب کی ایک پرس رات سے گزر رہی ہیں۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن کا سہارا لے کر میں آپ کو تسلی دے سکوں، پر اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آبدی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولا، نارائن چند میرا اکلوتا بیٹا تھا صاحب، بڑھیا نے سسکتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ اس بد نصیب سے چھوٹی صرف 2 بہنیں ہیں، ظالموں نے میرے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا۔ یہ ایک ماں کی بد دعا ہے، بھگوان انہیں چتا کی اگنی نصیب نہیں کرے گا۔ ایک دن وہ بھی میرے بیٹے کی طرح لاش کی صورت میں پڑے ہوں گے، کہیں اور لوگ ان کا کریا کرم کرنے کے بجائے ان پر تھوک رہے ہوں گے۔ ماں جی، ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے مجھے آپ سے آپ کی بیٹیوں سے کچھ سوالات کرنا پڑیں گے۔ امید ہے آپ مجھ سے مکمل تعاون کریں گی۔ قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے جو پوچھ گچھ ضروری ہوتی ہے وہ میں آپ سے کروں گا۔ ہاں تو ماں جی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مقتول کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی یا کبھی کسی سے جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ آبدی نے تفتیش کی ابتدا کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑھیا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، نہیں صاحب جی، میرا نارائن ایک شریف اور امن پسند بچہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، دشمنی تو دور کی بات، اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کامگور اور تنہائی پسند شخص تھا، بس ہر وقت اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ پھر بھی آپ نے کبھی اس کے معاملات میں تبدیلی محسوس کی ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیں۔ کوئی ایسی بات جو آپ کی نظر میں معمولی ہو، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جسے معمولی واقعہ سمجھ لیتا ہے، بعد میں وہی واقعہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں صاحب جی کہ وہ گزشتہ 1 ماہ سے اکثر کھویا کھویا سا رہتا تھا، شاید اسے باپ کی گمشدگی کا غم اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کے باپ نے مجھے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیا، بس ہر وقت طرح طرح کے جاب کرتا رہتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا پتی کہیں گم ہو گیا تھا؟ آبدی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں صاحب جی، اسے گم ہوئے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔
भगवान जाने कहाँ गायब हो गया। आपके पति क्या काम करते थे? काम काज कुछ भी नहीं करते थे साहिब जी, बस दिन रात एक मंदिर में घुसे रहते, हमारी तो महीनों खबर नहीं लेते, उसने शिकायती अंदाज में जवाब दिया। कौन से मंदिर में रहाइश थी उनकी? राम मंदिर में रहते थे जी। वही राम मंदिर जो शहर से बाहर एक वीराने में वाक़या है? आदमी ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। हाँ जी, वही राम मंदिर जो सदियों पुराना है। लोग कहते हैं उस मंदिर में जिन्नात बसते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से वहाँ जिन्नात को देखा है। सच झूठ का तो भगवान को ही मालूम होगा, पर लोग ऐसा कहते हैं। क्या मकतूल नारायण चंद ने भी अपने बाप को ढूंढने की कोशिश की थी? बिल्कुल साहिब जी, वो तो हर रोज़ सुबह सवेरे घर से बाप को ढूंढने के लिए निकल जाता था और अक्सर उसकी वापसी शाम डले होती। आदि ने पूछा, आपको या मकतूल नारायण चंद को अपने बाप की गुमशुदगी के मतलब क्या कुछ मालूम हुआ था? क्या उसकी गुमशुदगी को किसी दुश्मनी का शाखसाना या किसी शख्स की अदावत का नतीजा कहा जा सकता है? बुढ़िया ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर पुरसोज आवाज़ में बोली, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो तो मंदिर से कभी बाहर ही नहीं निकले थे। आम लोगों से तो वो कोई वास्ता ही नहीं रखते थे। बहुत कम लोगों से उनका वास्ता था। मंदिर के अंदर भी तो कुछ का दुश्मन हो सकता था। आप लोगों का कभी उस तरफ ख्याल क्यों नहीं किया? बिल्कुल साहिब जी, आप ठीक कहते हैं। नारायण चंद भी इस तरह की बातें किया करता था। उसे अपने बाप की गुमशुदगी में मंदिर के एक पुजारन का हाथ नजर आता था। वो अक्सर उस पुजारन को खरीदने के लिए मंदिर की जानिब निकल जाता। कत्ल होने से 2 दिन कबल भी वो मंदिर से होकर आया था। उस पुजारन का नाम क्या है? आदि ने मखसूस अंदाज में सवाल किया। नंदनी साहिब जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और आदि नंदनी का नाम सुनकर चौंक उठा। नारायण चंद की डायरी में वो ये नाम देख चुका था। इसका मतलब है कि नंदनी वाकई कोई अहम शख्सियत है। उसने दिल ही दिल में सोचा, फिर बुढ़िया से मुखातिब होकर बोला, ठीक है माँ जी, आप जाएं और अपनी दोनों बेटियों को अंदर भेज दें। उनसे भी मैं चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। अभी भेजती हूँ साहिब जी। इतना कहकर बुढ़िया कमरे से निकल गई और आबदी अपने जहन में सवालात तरतीब देने लगा। अब दोनों लड़कियाँ कमरे में दाखिल हो गईं तो आबदी बोला, बैठ जाओ। वो दोनों झिझकती हुई बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? आबदी ने बड़ी लड़की से सवाल किया। राधिका। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे भाई की किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं? आबदी ने बड़ी लड़की से सवाली अंदाज में पूछा। नहीं जी, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दुश्मनी तो एक तरफ रही। उसकी तो किसी के साथ दोस्ती भी नहीं थी। कभी किसी के साथ उसकी तलख कलामी हुई हो या कोई और बात जो तुम्हारे इल्म में हो? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, राधिका ने मनफी अंदाज में सार हिलाते हुए कहा। ताहम इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कभी उसकी किसी के साथ तलख कलामी या हाथापाई हुई हो, लेकिन घर में उसने कभी भी किसी लड़ाई झगड़े का जिक्र नहीं किया था। तुम्हें कुछ मालूम है शकुंतला जी? राधिका का जवाब सुनकर आबदी ने शकुंतला से सवाल किया। नहीं साहिब जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद आबदी ने तसल्ली देकर शंकर पांडे के साथ रुखसत हो रहा था। उन लोगों ने किसी पर शक का इजहार नहीं किया था, इसलिए आबदी ने नामालूम कातलों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।